Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 6 of CSC 291. Today we will continue our topic from the last lecture, which was requirement engineering. Just to give a quick overview of what we covered in the last lecture. First of all, we discussed the problems with requirement engineering, and if you guys remember, some of those problems were that the developers, they were very keen on developing, and rather than focusing on collecting the requirements, they straight away jumped into developing the code, which is a very common mistake that people usually make. The second problem was that whatever requirements are gathered, they are very ambiguous. But whenever you want anything to make you want to be very clear, if you have ambiguities, then they will be reflected in the final product. And the third problem was that the requirements, when they are gathered, they are unorganized. So it is very difficult to find the problems or commonalities between unorganized requirements. If the requirements are organized according to functionality or according to components, then it would make it easier for the development team to figure out the similarities and where are things where there are some contradiction between two requirements. तो रिक्वायरमेंट के अंदर हमने देखा क्या क्या प्रॉब्लम्स है. सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं, फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करते, और तीसरी आपकी प्रॉब्लम क्या है कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्लैरिटी नहीं होती. तो व्हाट वी सॉ कि रिक्वायरमेंट्स को फिर सही तरह से गैदर करने का क्या तरीका है. देन वी कवर्ड कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक वे which allows us to gather requirements which will not be ambiguous and which will be properly organized, and it will be they will bring clarity to what we have to develop. And we saw that there are 7 distinct tasks that we need to perform under requirement engineering. Number 1 was inception and number 2 was elicitation. Those were the 2 tasks that we covered in our previous lecture. In inception, what we tend to do is, inception is the starting phase or the first phase when you go and start gathering requirements. In inception, basically we ask 3 set of questions. Okay. In the first set of questions, what we want to identify is that who is our customer, and we want to understand, we want to develop a basic understanding of what the problem is. So in the first set of questions, we go and ask about briefly about what the product would be. Okay. And we try to identify the key stakeholders at the customer side. As I mentioned in the last lecture, that when you go in a company, there would be various people who would try to tell you that they want something done, okay, but there would be only handful of people whose decision will actually matter. Okay. And you need to identify those key people who can give you good information and whose decisions would be long lasting. So and then the second set of questions, they were kind of more elaborative, because in those set of questions we try to understand the processes, different processes. For I gave you various examples. जिस तरह हमने कहा था कि अगर HR का आप मॉड्यूल बना रहे हैं, तो you will go to maybe HR manager or other people in the HR department, and you try to understand the HR process currently followed in the company. Okay, what are their policies? For example, अगर late आते हैं employees, तो would they deduct salaries, or what is the actual number of leaves allowed in a year? You know, so you will basically try to understand the actual processes जिसके ऊपर आपको अपनी product develop करनी है. Those are the second set of questions. And there was the third set of questions जिसके अंदर हम पूछते थे customer से कि we have asked you so many questions, is there something that you think we have missed? So the customer, so this basically gives chance to the customer that if he or she wants to add something else to what we have already asked, they can do that. Okay. So basically we saw that there are 3 set of questions, starting from brief introduction of the product and identification of the key stakeholders, moving on to deeply understanding the business processes within the company, and number 3, we basically try to identify कि हम customer से उसका opinion लेते हैं कि if he wants to add something else. Then another thing in the third set of questions is that we try to analyze what we have asked. Okay, so basically we try to analyze whether the communication that we had with the customer, whether it was effective or not. So that is inception. Second phase was elicitation, and I think I have mentioned that elicitation is one of the most difficult tasks, because elicitation का अगर आप लफ्जी मतलब देखें तो इसका मतलब है उगलवाना, है ना. यानी कि आपने कस्टमर से पूछना है कि आपको अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्या. बाज़ औक़ात इट्स नॉट दैट द कस्टमर डजंट वांट टू शेयर इट विद यू, लेकिन कस्टमर को शायद पता ही नहीं होता कि उसने कौन सी चीज़ आपको बतानी है और कौन सी चीज़ आपको नहीं बतानी है. तो इन elicitation we saw 2 very interesting techniques which basically encourages
the participating customers to actually share different things with you, ठीक है, जो कि अगर आप 1-to-1 इंटरव्यू उनके साथ कर रहे हो तो मे बी दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो उसके अंदर जो पहली टेक्निक वी कवर्ड वाज इट वाज कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग। कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर हमने देखा था कि क्या करते हैं कि वी टेंड टू सिट विद द कस्टमर, ठीक है जी, उसमें कस्टमर होगा, देयर वुड बी members of your team, maybe your project manager, and you will sit in a big room, ठीक है, and what you would try to do is you will try to basically you will कोई एक बंदा होगा who will be controlling the meeting and then you will share your ideas कि जी प्रोडक्ट के अंदर ये होना चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर फीचर ए होना चाहिए, फीचर बी होना चाहिए, फीचर सी होना चाहिए, and then the other people they are also they can also actively participate and they can say नहीं जी जो फीचर ए है that is conflicting with our requirement, ठीक है। So in that process basically different people sit together and the purpose is to figure out what they want to be, what they want the सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी टू मेक। सो इस तरह आप इकट्ठे बैठ के रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। और एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर कि यू नीड अ मैकेनिज्म टू रिकॉर्ड what is being said in the meeting, ठीक है। इसके अंदर हमने बहुत सी चीजें डिस्कस की थी कि एक तरीका ये होता है कि आप पोस्टेट्स जो होती हैं, जो स्टिकी नोट्स कहते हैं, आप उनके ऊपर लिखते जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट पेस्टिंग इट ऑन द वॉल, ठीक है जी। दूसरा तरीका होता है कि आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखना शुरू करते हैं या मे बी यू कैन राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, बट द की थिंग इज दैट वट एवर इज बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है, और वट एवर थिंग्स आर फाइनलाइज्ड यू ट्राई टू राइट देम डाउन एंड रिकॉर्ड देम, ठीक है जी। सो दिस वाज कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग। नाउ यू कैन सी कि हाउ इट विल basically encourage different people कि अगर कोई बंदा आपको नहीं भी बताना चाह रहा है लेकिन और he doesn't know what, you know how to tell you or which information to actually give you, तो इस तरह की सेटिंग के अंदर जब डिफरेंट पीपल लोग मिलके शेयर कर रहे होंगे तो इट वुड मेक इट ईजियर फॉर डिफरेंट पीपल who are maybe not very communicative to actually share their ideas. The second technique for elicitation that we covered was quality function development, ठीक है जी। क्वालिटी फंक्शन हमने देखा था कि व्हाट वी टेंड टू डू इज वी हैव द कस्टमर विशेस ऑन वन साइड ऑफ द मैट्रिक्स एंड वी हैव द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑन द कॉलम्स। सो रोज के अंदर हमारे पास कस्टमर की विशेस और कॉलम्स के अंदर हमारे पास टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एंड देन व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू डू मैच मेकिंग, ठीक है जी। वी ट्राई टू से कि जी ये कस्टमर विश हमारी इस टेक्निकल रिक्वायरमेंट के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब ये था कि अगर कोई कस्टमर की विश हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट को के साथ फेवरेबल है तो हम उसको प्लस कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हमने दी थी कि कस्टमर वांट्स द प्रोडक्ट टू बी चीप, ठीक है, एंड द लेसर नंबर ऑफ गियर्स वी हैव द प्रोडक्ट वुड बी चीप, ठीक है। इस तरह के कस्टमर चाहता है कि केसिंग छोटी हो प्रोडक्ट की, तो गियर्स जितने कम होंगे केसिंग उतनी छोटी होगी, ठीक है। तो देन दीज टू हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है जी। और लेकिन इसी तरह अगर हम इसको लुकिंग अदरवाइज, जिस तरह हमने कहा था कि जी एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोडक्ट के अंदर ग्रूव्स होने चाहिए, जो कि आपको प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए ग्रूव्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। नाउ इफ यू वांट द डाई जिसके अंदर ग्रूव्स भी हों तो दैट वुड बी एक्सपेंसिव, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव के साथ ये इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। तो देन व्हाट दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू कि हम टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को कस्टमर विशर के साथ मैप करते हैं। द सेकंड थिंग दैट वी डू इन QFD इज that we try to evaluate our product with the customer's product, ठीक है। हम अपनी कस्टमर की विशेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रोडक्ट को अपने कंपेटिटर्स के साथ मैच करते हैं। उसका क्या फायदा होता है कि we try to figure out कि हमारी प्रोडक्ट अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट से किन किन फीचर्स में उससे बेहतर है और किन किन चीज़ों में उससे बुरी है। सिमिलरली हम अपनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर भी इसको कस्टमर के साथ मैच करते हैं, ठीक है। यानी कि पहले रो वाइज आपने अपने कंपेटिटर्स के साथ मैच किया, फिर कॉलम वाइज अपने कंपेटिटर के साथ मैच किया। What it helps you in doing is कि आप अपने पे टेक्निकली टारगेट्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपको पता लगा आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट की जो केसिंग है दैट इज वेरी स्मॉल प्रोडक्ट, तो आप अपना भी गोल रख लेते हैं कि आपने यहाँ तो उससे भी छोटी करनी है या एटलीस्ट उतनी करनी है, ठीक है। तो नाउ इस मेथड के अंदर आप देखें कि यू हैव सेट अ वेरी क्लियर गोल, देयर इज नो एम्बिग्विटी। आपने बता दिया कि जी आपकी केसिंग 1.5 इंचेस होनी चाहिए, यू आर नॉट सेइंग इट शुड बी स्मॉल, ठीक है। यू आर एक्चुअली सेइंग यू हैव गिवन इट अ वैल्यू कि योर केसिंग शुड बी 1.5 इंचेस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो यू सॉ कि QFD के अंदर इट एनकरेजेस पार्टिसिपेशन, ठीक है, इन डिफरेंट वेज, ठीक है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड अनदर थिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग इज कि इट हेल्प्स यू असाइन नंबर्स टू रिक्वायरमेंट्स। जिस हमने ये केसिंग की एग्जांपल देखी है, नंबर ऑफ गियर्स की एग्जांपल देखी है, बैटरी पावर की एग्जांपल देखें, तो हर चीज के अंदर जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि यू गिव इट अ वैल्यू, तो आपके रिक्वायरमेंट्स के अंदर से एम्बिग्विटी खत्म हो जाती है। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी कवर्ड इंसेप्शन एंड एलिसिटेशन. In today's lecture we will start off with elaboration. Okay जी,
So we will cover elaboration and we will go through elaboration is जो आप elaboration और analysis modeling they are basically similar things. ठीक है जी. आपके प्रोडक्ट की जो पहली टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन इसलिए कह रहे हैं कि यू स्टार्ट मेकिंग सम डायग्राम्स, ठीक है, वो आप एलेबोरेशन फेज के ऊपर स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो जो रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर की हैं उनकी बेसिस के ऊपर आप उसको एलेबोरेट करना शुरू कर देते हैं अपने सिस्टम को. ठीक है. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस लेक्चर को हम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं शेयर करना चाहूंगा कि एनालिसिस मॉडलिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ठीक है. एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर हम जो चीजें पढ़ेंगे, जो टेक्निक्स पढ़ेंगे मॉडलिंग की, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. जिस तरह हम जब यूज केसेस बनाते हैं, दे आर यूज्ड वेरी कॉमनली इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. ठीक है. या हम सीक्वेंस डायग्राम्स की बात करेंगे या डाटा फ्लो डायग्राम्स की बात करेंगे. तो इन दिस लेक्चर वी विल जस्ट barely touch upon those different things, यानी कि I will briefly tell you what a use case is, क्योंकि हम इसमें बेसिकली हमारा मकसद क्या है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर I want to share कि क्या क्या चीजें आती हैं. बट वी विल हैव सेपरेट लेक्चर्स जिसके अंदर हम यूज केसेस को डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस सीक्वेंस डायग्राम्स एंड वी विल डिस्कस ऑल दीज डायग्रामिंग टेक्निक्स इन डिटेल. ठीक है. लेकिन द पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर इज दैट वी वांट टू गो इन अ फ्लो, और मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के टॉपिक को पहले कवर करके देन वी विल मूव ऑन. ठीक है जी. सो elaboration and analysis modeling के अंदर हम क्या करते हैं, this is the first technical representation of a system and we try to elaborate on the requirements that we have gathered so far. ठीक है जी. और हम इसके अंदर different analysis techniques का एक छोटा सा overview करेंगे. ओके जी. So सबसे पहले goals of elaboration या goals of analysis modeling. ठीक है. Why we do this? ठीक है. हमें elaborate करने की क्या जरूरत है जब हमने लिख भी ली है requirements, then why do we need to further elaborate them? ठीक है जी. Number one, as I already said, it provides the first technical representation of a system. ठीक है जी. And it is easy to understand and maintain. Why it is easy to understand and maintain? ठीक है जी. This is very important to understand. इस तरह there is a saying कि a picture is worth 1,000 words. वो इसीलिए कहते हैं कि when you see a picture, so the description of that picture can be basically of 2 pages, 3 pages, 4 pages. Whereas when you draw something, तो यू कैन पुट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दैट पिक्चर. ठीक है. तो ये जब हम अपनी डिफरेंट टेक्निकल ड्राइंग्स बनाते हैं तो इसके अंदर वी बेसिकली हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि हम उस एक पिक्चर के अंदर डाल देते हैं. ठीक है जी. नंबर 3, इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ साइज बाय पार्टीशनिंग द सिस्टम. यानी इफ यू हैव अ वेरी बिगर सिस्टम, ठीक है जी, जिसको फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं लग रहा है कि इस सिस्टम की बाउंड्रीज कहाँ पे बनेगी, या एक कंपोनेंट कहाँ खत्म होगा, दूसरा कहाँ से शुरू होगा. तो जब आप ये टेक्निकल ड्राइंग्स बना रहे होते हैं, ठीक है, तो विल सी कि किस तरह आपके सिस्टम की बाउंड्रीज ऑटोमेटिकली बन जाती है. कुछ आप फंक्शनैलिटीज की बेस के ऊपर चीजों को अलग कर देते हैं. ठीक है. देन विल सी कि क्लास डायग्राम्स भी जब बनाते हैं तो उसके अंदर भी आप अपने सिस्टम को पार्टीशन कर देते हैं. तो इफ द प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, देन बाय गोइंग थ्रू दिस एनालिसिस मॉडलिंग यू बेसिकली पार्टीशन योर सिस्टम. ठीक है. Or it uses graphics whenever possible. We'll see that the different diagramming techniques are basically part of this analysis modeling. It differentiates between essential information versus implementation information. ठीक है जी. This is very important. Helps in tracking and evaluation of interfaces. Provides tools other than narrative text to describe software logic and policy. ये तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी डायग्राम्स बनेंगे तो it is basically something else than narrative description. क्योंकि जब आप रिक्वायरमेंट्स कस्टमर से लिख रहे हैं तो दैट इज अ नैरेटिव डिस्क्रिप्शन. ठीक है. क्योंकि आप इंग्लिश के अंदर लिखते जा रहे हैं कि यूजर को पहली रिक्वायरमेंट है कि सॉफ्टवेयर बड़ा कि ऑथेंटिकेशन लॉगिन पासवर्ड के साथ होनी चाहिए, फिर आपका जो सिस्टम है बड़ा सिक्योर होना चाहिए और सिस्टम 9 to 5 फंक्शनल होना चाहिए. दीज आप नैरेटिव में लिख रहे हैं. लेकिन व्हेन यू मेक डायग्राम्स तो एम्बिग्यूटीज खत्म हो जाती हैं, और इसके अंदर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन उस एक डायग्राम के अंदर डाल सकते हैं. ओके जी. अच्छा, देन देयर आर फ्यू रूल्स ऑफ थंब कि व्हेनेवर यू डू एनालिसिस मॉडलिंग यू शुड ट्राई टू फॉलो सर्टेन थिंग्स. ठीक है जी. The analysis model should focus on requirements that are visible within the problem or business domain. ठीक है जी. Now this is something very interesting कि इस जुमले का क्या मतलब है कि आपको obviously हम जब requirement कहते कर रहे हैं तो हमारा focus requirements पे ही होगा. इसमें important चीज़ ये है कि जो level of abstraction है या जो level of detail है वो बहुत high होना चाहिए. यानी कि आप high से मुराद ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ड्रिल डाउन नहीं करना किसी एक रिक्वायरमेंट के अंदर, आपको बेसिक चीज़ों को पहले शो करना है. ठीक है. यानी कि वी आर नॉट कंसर्न कि एक चीज किस तरह इंप्लीमेंट होगी, व्हाट वी आर कंसर्न कि क्या चीज हमने इंप्लीमेंट करनी है. ठीक है. तो वी आर नॉट वरीड अबाउट द निटी-ग्रिटीज कि किसी एक चीज की इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी. व्हाट वी आर वरीड अबाउट इज कि वो चीज क्या है जो हमने इंप्लीमेंट करनी है. ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Each element of the analysis model should add to an overall understanding of the software requirements. ठीक है. This is another very interesting line कि आप जब भी कोई, this is very common mistake which mostly students make कि
स्पेशली आई सॉ मेनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स, व्हाट दे डू इज उनको जिस जिस डायग्राम का नाम आता है वो सारी डायग्राम्स अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बना देते हैं. नाउ दिस इज नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर्पस. आपकी जो डिफरेंट, और ये हमारे एनालिसिस मॉडलिंग का पर्पस नहीं है. द पॉइंट ऑफ मेकिंग दीज डायग्राम्स इज कि ईच न्यू डायग्राम यू मेक इट शुड गिव यू सम एडिशनल इंफॉर्मेशन. ठीक है जी. इफ आर डायग्राम इज नॉट एडिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम तो यू शुड नॉट मेक इट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम यूज केस डायग्राम किस लिए बनाते हैं, ताकि हमें पता लगे कि कौन से यूजर्स आपके सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे. ठीक है. इसी तरह जब आप डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं तो आपका पर्पस ये होता है कि आप डाटा के फ्लो को मॉनिटर कर सकें. ठीक है. नो दीज आर जस्ट टू एग्जांपल्स. अब आपको ये दोनों चीजें, डायग्राम्स एक नई चीज बताती है. ठीक है. लेकिन अगर आपको एक डायग्राम की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यू डू नॉट नीड टू मेक एन एक्टिविटी डायग्राम. ठीक है. लेकिन अगर आप वो भी बना देंगे तो दैट इज वेस्टेड एफर्ट. ठीक है. तो important thing to understand is कि if a diagram is not adding to any additional information, then you should not make it. Or number 3 is the model should delay the consideration of infrastructure and other non-functional models until the design phase. ठीक है. ये this is somewhat related to point number 1 कि आपका level of abstraction should be very high. कि here we are not concerned कि हमने ये चीज बनानी कैसे है. ठीक है. हम अभी डिजाइन के इश्यूज को नहीं देख रहे. हम सिर्फ अभी सिस्टम को, जिस तरह हमने कहा था कि पार्टीशन करते हैं अपने सिस्टम को, तो अगेन वी आर नॉट कंसर्न कि कौन सी पार्टीशन कैसे चलेगी. ठीक है. उनके इंटरफेस, हम सिर्फ इस स्टेज के ऊपर उनके इंटरफेसेस क्या है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट. हम सिर्फ अपने सिस्टम को पार्टीशन कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. नंबर 4 इज द मॉडल शुड मिनिमाइज कपलिंग थ्रू आउट द सिस्टम. ठीक है जी. कपलिंग क्या होती है कि इफ फॉर एग्जांपल अगर आपके सिस्टम की सारी चीजों के दरमियान में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी ना, तो इट विल बी अ वेरी हाईली कपल्ड, or the coupling would be very strong in that case. ठीक है. लेकिन if you have lot of independent classes, ठीक है, तो उसका फायदा क्या होगा कि आप हर चीज को इंडिविजुअली डेवलप कर सकेंगे and then you integrate them and test it. ठीक है. तो आपको अपनी क्लासेस के दरमियान और अपने फंक्शंस के दरमियान जो इंटरकनेक्टेडनेस है या डिपेंडेंस है उसको कम से कम करना चाहिए. ठीक है. इन दिस एनालिसिस फेज. और नंबर 5 इज द मॉडल शुड प्रोवाइड वैल्यू टू ऑल द स्टेक होल्डर्स. ठीक है. एज आई सेड कि ये जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया पॉइंट नंबर 2 के अंदर, कि जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं उसको कोई इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. इसी तरह जो भी आप डायग्राम बना रहे हैं उसको सारे स्टेक होल्डर्स के लिए कुछ वैल्यू ऐड करनी चाहिए. ठीक है. अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ऑब्वियसली देयर वुड बी वैल्यू एडेड. और द मॉडल शुड बी केप्ट एज सिंपल एज इज पॉसिबल. ठीक है जी. यानी कि आपको ये जरूरी नहीं है कि आपने मॉडल के अंदर बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटीज सिर्फ इसलिए ऐड करें कि इट विल लुक कि आपने बहुत काम किया. ठीक है. द पॉइंट इज टू गेन सम इन्फॉर्मेशन. इफ अ सिंपल मॉडल गिव्स यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन तो गुड एनफ. ठीक है जी. So these are the general principles that we need to keep in mind whenever we are doing analysis modeling. अच्छा जी. Now there are different analysis modeling approaches. ठीक है जी. इनको broadly आप 2 categories में divide कर सकते हैं. पहली category को हम कहते हैं structured analysis. ठीक है. And the second category is object oriented analysis. ठीक है जी. Structured analysis के अंदर हमारा focus क्या होता है? हमारा focus होता है data और processes के ऊपर, और वो processes हमारे data को कैसे transform करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपका एक एडिशन का फंक्शन है. ठीक है. और आपका डाटा क्या है, वेरियस नंबर्स दैट यू वांट टू ऐड. ठीक है. अब हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हमारा एक प्रोसेस है जो कि नंबर्स को ऐड करता है. इसके अंदर जो नंबर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, 3 इसके अंदर आ रहे हैं, इसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा 5. ठीक है. तो स्ट्रक्चर के अंदर वी आर कंसर्न विद दैट. ठीक है जी. अगर हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखें तो इट कंसिडर्स डाटा एंड द प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स द डाटा एज सेपरेट एंटिटीज. ठीक है जी. और डाटा इज मॉडल्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स. ठीक है जी. यानी कि आप डाटा के एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स की बेसिस के ऊपर उसको मॉडल करते हैं. ठीक है जी. और आपका जो मॉडलिंग होती है उसके अंदर क्या चीजें होती है, देयर इज एन इनपुट डाटा, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आपके डाटा के ऊपर होती है, और देन देयर इज एन आउटपुट डाटा. सो दिस इज स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस. तो सेकंड कैटेगरी है जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस है. उसके अंदर हमारा फोकस क्या होता है, क्लासेस के ऊपर. ठीक है. मेन हम कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं. ठीक है जी. इट फोकसेस ऑन द डेफिनेशन ऑफ क्लासेस एंड इन द मैनर इन विच दे इंटरेक्ट और कोलैबोरेट विद वन अनदर. ठीक है. यानी कि नाम से ही जाहिर था कि एक और चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. तो इफ यू आर फेमिलियर विद एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लासेस के अंदर या हमारी जो बाउंड्रीज होती है, दीज आर बेसिकली डिफरेंट क्लासेस के अंदर हमारा सोल्यूशन डिवाइड हुआ होता है. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम क्या करते हैं, क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं, एंड वी सी कि कौन सी क्लास दूसरी क्लास से किस तरह से कोलैबोरेट कर रही है. ठीक है जी. नाउ
Here is the different techniques that fall under those two categories. जो हमने पिछली अभी दो कैटेगरीज देखी हैं, स्ट्रक्चर्ड की और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, उसके अंदर ये सारी मॉडलिंग की टेक्निक्स फॉलो करती है, ठीक है जी। तो लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर्ड फर्स्ट। स्ट्रक्चर्ड के अंदर एक ही तरह की मॉडलिंग होती है जिसे हम कहते हैं फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग, ठीक है। फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग जिसका नाम से ही जाहिर है कि इट बेसिकली हेल्प्स यू मॉडल द फ्लो ऑफ डाटा थ्रू योर सिस्टम, ठीक है। आप जो भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं क्या करता है बेसिकली, इट टेक्स सम इनपुट, इट ट्रांसफॉर्म्स इट एंड देन इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट, ठीक है। जिस तरह लोग, अगर आप एचआर का किसी का सिस्टम ऑटोमेट करके देते हैं तो उसके अंदर आपका इनपुट डाटा क्या है, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ इनपुट डाटा। सबसे पहले लोगों की अटेंडेंस जो डेली है, दैट इज इनपुट डाटा। फिर लोगों का जो लीव के रिकॉर्ड्स हैं, दैट इज अनदर इनपुट डाटा, ठीक है। और फिर लोगों की सैलरीज जो है, दैट इज ऑल्सो इनपुट डाटा। जो उसकी आउटपुट निकलेगी वो क्या निकलेगी कि हर बंदे ने महीने के आखिर में कितनी छुट्टियां की या कितनी दफा लेट हुआ, ठीक है। तो बेसिकली आपका दिस इज काइंड ऑफ योर एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम के जिसके अंदर आप फ्लो आपका क्या है, आपका इनपुट डाटा क्या है, योर अटेंडेंस, योर लीव रिकॉर्ड, दिस इज योर इनपुट डाटा एंड देन यू ट्रांसफॉर्म योर डाटा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर प्रोसेसेस यू हैव, ठीक है। जिस तरह आपका एचआर का सिस्टम ये भी करता है कि लोगों की सैलरीज भी कैलकुलेट करके बता देता है, ठीक है। तो आपका प्रोसेस क्या होगा कि लोगों के इनपुट आउटपुट टाइमिंग्स के लिहाज से आप उनकी सैलरीज कैलकुलेट करते हैं, उनकी लीव्स अगर हैं तो सैलरी कटनी है तो काटते हैं, देन योर आउटपुट इज सैलरी फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉइज एंड देयर रिकॉर्ड कि उन्होंने कितनी छुट्टियां की थी, हम कितनी दफा लेट आए या उनका कितना ओवर टाइम था, ठीक है। सो दिस इज फ्लो ओरिएंटेड के अंदर हम सिर्फ डाटा के फ्लो को अपने सिस्टम के अंदर से मॉडल करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो डिफरेंट तरह की हम डायग्राम्स बनाते हैं या डिफरेंट तरह की जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो क्या होती हैं, सबसे पहले आप इसके अंदर हम डाटा स्ट्रक्चर डायग्राम्स, ठीक है। दिस इज फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग, क्योंकि उसके अंदर जहां पे भी डाटा आ जाएगा ना, दैट इज फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग। फिर यू हैव डाटा फ्लो डायग्राम्स, ठीक है। डाटा फ्लो डायग्राम जैसा मैंने आपको बताया था, इनको हम डीएफडीज भी कहते हैं। ये क्या करती हैं, आपके सिस्टम के अंदर से डाटा को मॉडल करती हैं और डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर आप अपने सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नंबर 3 इज कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स, ठीक है। और नंबर 4 इज प्रोसेसिंग नैरेटिव्स। तो हम इन सारों को ब्रीफली अभी देखेंगे इस लेक्चर में और इस अगले लेक्चर में, लेकिन हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनकी यूएमएल नोटेशंस को भी डिस्कस करेंगे, ओके जी। सो दिस वाज फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो 3 आपके तरीके यूज होते हैं, नंबर 1 इज सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, ठीक है। नाउ एज द नेम सजेस्ट, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग आपकी क्या करती है कि इट ट्राई टू मॉडल्स डिफरेंट सिनेरियोज दैट कैन ऑकर इन योर सिस्टम, ठीक है जी। डिफरेंट सिनेरियो क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एन एचआर मैनेजर इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, ठीक है, दैट इज वन सिनेरियो। अब एचआर मैनेजर जब सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा तो वो किस किस तरह से इंटरेक्ट करता है, वी रिकॉर्ड इन दिस। तो सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के आपके क्या क्या टेक्निक्स हम यूज करते हैं, सबसे पहला आता है आपका यूज केस टेक्स्ट, ठीक है। नंबर 2 आर यूज केस डायग्राम्स, ठीक है। नंबर 3 आर एक्टिविटी डायग्राम्स एंड नंबर 4 आर स्विम लेन डायग्राम्स, ठीक है। अब यूज केस टेक्स्ट क्या होता है, यूज केस जैसे मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि यूज केसेस क्या करते हैं, यूज केसेस आपके यूजर का आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एचआर मैनेजर की एग्जांपल दी थी। इफ एन एचआर मैनेजर कैन परफॉर्म 3 फंक्शंस, पहला फंक्शन वो ये कर सकता है कि ही कैन लॉग इन इनटू द सिस्टम, ही कैन व्यू डेली रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, ठीक है, और मे बी ही कैन जनरेट रिपोर्ट्स। तो देयर आर 3 थिंग्स दैट ही कैन डू। तो आपकी जो यूज केस इसका टेक्स्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि एन एचआर मैनेजर शुड लॉग इन इनटू द सिस्टम यूजिंग अ पासवर्ड एंड प्रॉपर लॉगिन, यानी कि उसकी ऑथेंटिकेशन होगी। जो सेकंड आप इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर चीज लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि ही कैन व्यू द डेली अटेंडेंस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, के कौन से छुट्टी पे हैं, कौन से लेट आए हैं। द थर्ड थिंग यू वुड से कि ही कैन आल्सो जनरेट मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट्स, ठीक है। और जब आप इसकी डायग्राम बनाएंगे तो यू वुड मेक एन एक्टर जिसको आप कहेंगे यूजर, आपका जो एचआर मैनेजर है, और ही कैन परफॉर्म 3 फंक्शंस। तो इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे इट बेसिकली मेक्स इट इजी फॉर यू टू सी कि आपका एक एक्टर आपके सिस्टम के अंदर कौन से रोल्स परफॉर्म कर रहा है। जो सेकंड कैटेगरी है उसको हम कहते हैं एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है कि अगर ऑल्टरनेटिव एक्शंस आपके सिस्टम के अंदर यूजर ले सकता हो तो आप उसको एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू मॉडल कर सकते हैं। और विल सी व्हाट स्विम लेन डायग्राम्स इज। तो सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग हमने 2 अभी पढ़ी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पहली है सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, जो इसकी सेकंड है उसको हम कहते हैं बिहेवियरल मॉडलिंग, ठीक है। बिहेवियर मॉडलिंग क्या करती है कि आपके सिस्टम का बिहेवियर रिकॉर्ड करती है, ठीक है जी, और दैट बिहेवियर इज अक्रॉस द क्लासेस, ठीक है। यानी कि आपने अपने सिस्टम की बाउंड्रीज बना दी, ठीक है, और आपने डिस्टिंग्विशेबल क्लासेस में उसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो सीक्वेंस डायग्राम होती है ये करती है आपके सिस्टम का सीक्वेंस रिकॉर्ड करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक कंपोनेंट है जो कि यूजर की ऑथेंटिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास है, ठीक है।
अब कोई भी यूजर जब आपके सिस्टम के अंदर लॉगिन होगा तो पहली चीज वो क्या करेगा, वो उस कंपोनेंट के पास जाएगा, क्योंकि वो उसको अपना पासवर्ड और यूजर नेम देगा, वो ऑथेंटिकेट करेगा, तो फिर आपका यूजर अगली चीज में जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सीक्वेंस डायग्राम्स के जैसे नाम से ही जाहिर है, दे आर इन अ सीक्वेंस। ठीक है, आप उसके अंदर अगर स्टार्टिंग एक्शन से लेके उसको रीड करना शुरू करें तो यू विल सी अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट समबडी वुड परफॉर्म इन योर सिस्टम। ठीक है, तो वी विल सी इन डिटेल कि ये बिहेवियर मॉडलिंग हम कैसे करते हैं और सीक्वेंस डायग्राम्स कैसी दिखने में लगती हैं। द थर्ड मॉडलिंग टेक्निक इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस इज कॉल्ड क्लास बेस्ड मॉडलिंग। ठीक है, क्लास बेस्ड मॉडलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपने सिस्टम की क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है जी, और उसको हम कहते हैं क्लास डायग्राम्स, जिसकी बेसिस के ऊपर बनती है। फिर क्लास डायग्राम्स के अंदर हमारे पास और क्या होते हैं, वी हैव पैकेजेस, वी हैव सीआरसी मॉडल्स। सीआरसी मॉडल्स क्या होते हैं, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन मॉडल्स, कि क्लासेस आपकी दूसरी क्लासेस के साथ कोलैबोरेट कैसे करती हैं और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करती हैं दूसरी क्लासेस की। ठीक है, एंड देन विल सी कि कोलैबोरेशन डायग्राम्स कैसे बनते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट डायग्रामिक टेक्निक्स दैट वी यूज इन दोज टू ब्रॉड मॉडलिंग और एनालिसिस मॉडलिंग टेक्निक्स। हमारी कौन सी थी, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। देन वी सॉ कि इनके अंदर कौन सी तरह के हम डायग्राम्स या क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं इनको इन एनालिसिस टेक्निक्स के थ्रू अपने सिस्टम की मॉडलिंग करने के लिए। ओके जी, नाउ जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू देम कि सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग क्या करती है। सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग इट डिस्क्राइब्स द सिस्टम फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यूजिंग सिनेरियोज दैट डिपिक्ट इन द यूज केस एंड एक्टिविटी डायग्राम्स। एज आई टोल्ड यू कि सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग आपके यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिस्टम को बताएगी। ठीक है, कि कौन से यूजर आपके सिस्टम के कौन से एक्शंस परफॉर्म करेंगे। क्लास बेस्ड एलिमेंट्स आइडेंटिफाई द डोमेन classes for the objects manipulated by the actors, the attributes of these classes and how they interact with one another। ठीक है, इस डेफिनेशन के अंदर मल्टीपल चीजें हैं कि सबसे पहले तो आप अपनी क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप अपने क्लासेस के एक्टर्स और अपने क्लासेस के एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और क्लासेस के एट्रीब्यूट्स के बाद आप ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी जितनी बार फॉर एग्जांपल यू हैव 5-6 क्लासेस, तो आपस में किस तरह इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि जब आपकी पूरी प्रोडक्ट बनेगी तो ऑब्वियसली ऑल द क्लासेस विल कोलैबोरेट विद वन अदर इन वन वे और द अदर। ठीक है जी। नंबर 3 आर बिहेवियरल एलिमेंट्स। ये क्या करते हैं, दे यूज स्टेट डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। यानी कि आप जो स्टेट डायग्राम्स हम बनाते हैं अपने सिस्टम के डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आइडल स्टेट, एक्टिव स्टेट, या आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो आप स्टेट्स के अंदर जंप करते हैं डिपेंडिंग ऑन सर्टेन एक्शंस। ठीक है जी, और हम देखते हैं कि वो एक्शंस क्या हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर जंप कर रहे हैं। फाइनली फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स क्या करते हैं, दे यूज डाटा फ्लो डायग्राम्स टू शो द इनपुट डाटा दैट कम्स इनटू अ सिस्टम। ठीक है जी, एंड सम फंक्शंस आर अप्लाइड ऑन द डाटा, और आपको कोई आउटपुट डाटा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो दीज आर द 4 ब्रॉड एनालिसिस मॉडलिंग टेक्निक्स। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट व्हाट सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग इज। जो हमने सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के अंदर देखा कि यूज केसेस होते हैं, यूज केस टेक्स्ट होता है, एक्टिविटी डायग्राम्स होती है। विल क्विकली गो थ्रू देम। ठीक है जी, the first thing is developing use cases। ठीक है, as I said you before starting today's lecture कि ये use cases they are very important। ठीक है, हम आज की lecture के अंदर this is a quick overview of these different diagrams। We will have separate lectures once we finish the requirement engineering topic। We will have separate lectures on these individual topics। ठीक है जी, now क्विकली कि हम यूज केसेस को कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे डेवलप करते हैं, तो देयर कैन बी 2 स्टेप्स। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द सेट ऑफ एक्टर्स दैट विल बी इन्वॉल्व्ड। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि सिनेरियो बेस्ड के अंदर हम यूजर के पर्सपेक्टिव से अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला चीज क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि सिस्टम के यूजर्स कौन कौन है जिनको हम एक्टर्स कह रहे हैं। ठीक है, अब एक्टर्स की क्या डेफिनेशन है कि एक्टर्स आर पीपल, दे कैन बी इंडिविजुअल्स यानी कि ह्यूमंस हो सकते हैं जो आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करें। दे कैन बी डिवाइसेस, कोई प्रेफरल डिवाइस है, जिस तरह ये पेन से मैं स्क्रीन के ऊपर लिखता हूं तो दिस इज एन एक्टर इन दिस केस, क्योंकि इससे मेरे सिस्टम को कुछ इनपुट जा रही है। ठीक है, नंबर 3 इज अदर सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल कोई और सॉफ्टवेयर है जो कि इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दीज ऑल आर एक्टर्स। क्योंकि ये हमारे सिस्टम की बाउंड्री के बाहर से हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी, एक्टर्स आर पीपल, डिवाइसेस और अदर सिस्टम्स दैट यूज द सिस्टम और प्रोडक्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फंक्शन एंड बिहेवियर दैट इज टू बी डिस्क्राइब। ठीक है, यानी कि जिस तरह हम एचआर की मैं आपको बार बार एग्जांपल्स दे रहा हूं,
तो अगर हमारे सिस्टम की बाउंड्री इस तरह से हम बना दें, हम कहें कि जी हमारा सिस्टम की बाउंड्री ये है, ठीक है। अब अगर हमने इसके एक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि हमारे कौन कौन एक्टर्स हैं, ठीक है, तो एक तो हमारे एक्टर्स हो गया जो हमारा HR का मैनेजर है, ठीक है, जो कि इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, इसको हम कह देते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सोल्यूशन, ठीक है। तो एक एक्टर तो हमारा क्या हो गया, HR मैनेजर हो गया, ठीक है। दूसरा एक्टर हमारा कौन हो गया, दूसरा एक्टर हम कहते हैं हमारा हो गया वो बायोमेट्रिक डिवाइस जिसके जरिए एम्प्लॉइज अटेंडेंस अपनी लगा रहे हैं, ठीक है, दैट इज अनदर, ठीक है। तीसरा एक्टर हमारा कौन हो गया, हम कहते हैं कि तीसरा एक्टर हमारा हो गया कि एक और फाइनेंस का सिस्टम है जिससे हम हर एम्प्लॉय की सैलरी इसको आती है इनपुट, ठीक है, तो हम कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल जिसके अंदर हमारा ह्यूमन भी आ गया जो कि HR मैनेजर, देन वी हैव बायोमेट्रिक डिवाइस जो हमको हम एज ए एक्टर ले रहे हैं, एंड देन वी हैव फाइनेंस सिस्टम जो कि हमें हर एम्प्लॉय की सैलरीज दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आपके एक सिस्टम के एक्टर्स कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड चीज क्या है, आप एक्टर्स की सिंपलीफाई अगर इस डेफिनेशन को करें तो दैट इज कि एक्टर्स आर एनीथिंग दैट कम्युनिकेट विद द सिस्टम और प्रोडक्ट एंड दैट आर एक्सटर्नल टू द सिस्टम इटसेल्फ, यानी कि आपके सिस्टम की वो बाहर की चीजें, दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिस्टम। अच्छा, तो पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि सिर्फ हमने एक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको सारे यूजर्स, क्योंकि डिफरेंट यूजर्स दे कैन प्ले डिफरेंट रोल्स। अब नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल जिसके अंदर मैं कह रहा हूं कि HR मैनेजर है, लेकिन इमेजिन अ कंपनी विद मे बी 2000 एम्प्लॉइज और 3000 एम्प्लॉइज, तो एक HR मैनेजर इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। देयर वुड बी अ होल HR डिपार्टमेंट, और HR डिपार्टमेंट के अंदर पता नहीं कितने लोग होंगे, ठीक है, जिसके जो कि दे कैन बी 20, 30, 50 पीपल इन एन HR डिपार्टमेंट, और मे बी डिफरेंट इंडिविजुअल्स दे इंटरेक्ट विद द सिस्टम इन डिफरेंट वेज, सो ऑल ऑफ देम दे वुड बी एक्टर्स, ठीक है। So you need to keep in mind that in the first phase we identify all the actors and we need to be very careful that we identify all the people who can interact with the system, ठीक है। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि कौन कौन लोग हैं तो हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकें कि हमें किस यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फीचर डालना है, ठीक है। मल्टीपल लोग मल्टीपल तरह के काम कर सकते हैं सिस्टम के साथ, ठीक है। The second step is that we develop use cases, ठीक है, where each one answers a set of question, ठीक है। अब जो यूज केस हम बना रहे हैं उसके अंदर अब ये नहीं है कि आप डायग्राम्स ज्यादा बनाते जाए, ठीक है। द आइडिया इज दैट वी ट्राई टू गेन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग लीस्ट नंबर ऑफ डायग्राम्स, क्योंकि दैट वुड बी आइडियल। जितनी कम आपको डायग्राम बनानी पड़ेंगी उसका मतलब है उतनी कम आपकी एफर्ट है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी उसकी बेसिस पे ज्यादा होगी दैट वुड बी गुड, ठीक है जी। ओके जी, मूविंग ऑन। तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपका एक यूज केस डायग्राम आंसर करती है, ठीक है। विल गो थ्रू देम वन बाय वन, ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका एक यूज केस जो आंसर करना चाहिए उसको कि हु इज द प्राइमरी एक्टर और एक्टर्स एंड द सेकेंडरी एक्टर्स, ठीक है। द प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टर में क्या फर्क है। आपके यूज केस के अंदर कुछ एक्टर्स जो होते हैं जो कि जिनको हम प्राइमरी एक्टर्स कहते हैं वो एक्टर्स होते हैं जो कि कुछ फंक्शंस को इनिशिएट करते हैं। जिस तरह आपका जिस तरह आई कैन गिव यू एग्जांपल, जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब आप रेस्टोरेंट के अंदर हम फंक्शनैलिटी मॉडल कर रहे हैं कि कस्टमर गोज इन और वो ऑर्डर कैसे प्लेस करता है, ठीक है। इफ आई एम द कस्टमर आई विल गो इनटू अ रेस्टोरेंट एंड आई हैव इनिशिएटेड कम्युनिकेशन विद द सिस्टम, ठीक है। मैंने कहा जी मेन्यू ले आए ब्ला ब्ला ब्ला। वंस आई गिव एन ऑर्डर तो मैं एक और एक्टर को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, हु इज द वेटर, ठीक है। और एक और एक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है विच इज द शेफ, जिसको कि पता लग रहा है कि जी ये खाना आपने बनाना है। तो इन केसेस के अंदर जो शेफ और वेटर है दे आर सेकेंडरी एक्टर्स, ठीक है। यानी कि आई एम द एक्टर बिकॉज आई हैव इनिशिएटेड कम्युनिकेशन विद द सिस्टम, ठीक है, और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम है, तो आई एम द प्राइमरी एक्टर एंड दोज आर सेकेंडरी एक्टर्स। तो सेकंड क्वेश्चन आपका आंसर होना चाहिए कि व्हाट आर द एक्टर्स गोल्स। अगर आपका यूज केस आपको ये नहीं बता रहा कि ये एक्टर इसका गोल क्या है सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने का, तो दैट यूज केस इज नॉट राइट। क्योंकि आप जब यूज केस डायग्राम को देखें तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये सिस्टम या ये जो एक्टर है मेरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट क्यों कर रहा है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट प्री कंडीशंस शुड एग्जिस्ट बिफोर द सिनेरियो बिगिंस, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये फॉर एग्जाम्पल हम अपने सिस्टम में इंटरेक्शन, जिस तरह इट्स वेरी इसकी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि अगर आपका एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, या जिस तरह आप
यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज को रजिस्टर करते हैं, तो उसकी प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन उसकी ये है कि आपका पहले लॉगिन पासवर्ड बना होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका लॉगिन पासवर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप कैसे कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके यूज केस को ये भी बताना चाहिए कि व्हाट आर द प्री कंडीशंस बिफोर एन एक्टर कैन परफॉर्म समथिंग एल्स, ठीक है जी। और द फोर्थ थिंग इज कि व्हाट मेन टास्क्स और फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द एक्टर। आपको आप यूज केस को ये बताना चाहिए कि कौन से एक्शंस कौन सा एक्टर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट एक्सेप्शंस माइट बी कंसीडर्ड एज द सिनेरियो इज डिस्क्राइब्ड, ठीक है। अब यूज केस के अंदर कुछ बाज़ औक़ात आप ऐसे एक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं विच वुड हैपन अपॉन अ गिवन सिनेरियो, या कोई एक एक्शन होगा जिसकी वजह से वो दूसरा एक्शन होगा, ठीक है। तो वी नीड टू सी कि कौन सी चीज़ किस तरह से आपके यूज केस के अंदर मॉडल हुई है, ठीक है। व्हाट वेरिएशंस इन द एक्टर्स इंटरेक्शन आर पॉसिबल, ठीक है। जिस तरह हमने एचआर मैनेजर की एग्जांपल ली, तो एचआर मैनेजर अब मल्टीपल तरह से इंटरेक्ट कर सकता है। पहला वो इंटरेक्शन उसका ये है कि उसने सिस्टम के अंदर लॉग इन किया, ठीक है, और सिर्फ लॉग आउट कर दिया। दूसरा इंटरेक्शन उसका क्या है कि ही लॉग्स इन द सिस्टम एंड ही बेसिकली ट्राइज टू सी कि कितने एम्प्लॉई आ जाए और कितने एब्सेंट है, ठीक है। थर्ड इंटरेक्शन क्या है कि ही कैन बेसिकली जनरेट रिपोर्ट्स। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्टर्स की एक्शंस के अंदर वेरिएशंस क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली चीज क्या है कि व्हाट सिस्टम इंफॉर्मेशन आपका ये एक्टर यूज करेगा या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्योंकि जब आपका एक्टर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है तो ही विल परफॉर्म सम फंक्शन, ठीक है, और जब वो फंक्शन परफॉर्म करेगा तो ही विल यूज सम डाटा, ठीक है, और ही विल प्रोड्यूस सम डाटा, ठीक है, और ही कैन डू बोथ, ठीक है। तो वी नीड टू नो कि क्या हो रहा है। अब एक्टर सिस्टम के साथ इस फंक्शन को इंटरेक्ट करते हुए इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन टू द डाटा, ठीक है। Another thing is, will the actor have to perform the system about changes into the external environment, ठीक है। कि एक्टर को, क्योंकि एक तो आपका फॉर एग्जांपल आपके किसी फंक्शन के अंदर कोई डाटा मैनिपुलेट होता है और द डाटा इज बैक्ड अप इनटू एन आउटसाइड डाटाबेस, ठीक है। तो इफ दैट इज द केस, तो क्या एक्टर वो चीज आपका यूज केस उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है जी। और फाइनली कि डज द एक्टर विश टू बी परफॉर्म्ड अबाउट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस आती हैं तो आपको एक्टर को उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो दीज आर वेरी ब्रॉड सेट ऑफ क्वेश्चन, दे बेसिकली कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन जब आप बेसिक्स के ऊपर यूज केस बनाना स्टार्ट करते हैं तो यू आर ओनली कंसर्न विद वेरी सिंपल थिंग्स। आप एक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आप प्राइमरी सेकेंडरी एक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, आप यूजर की और अपने एक्टर की सिस्टम के साथ इंटरेक्शन फंक्शंस की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और आप ये डिफरेंट सिनेरियोज भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन दीज सेट ऑफ क्वेश्चंस दे आर वेरी ब्रॉड सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। दे बेसिकली कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द यूज केस, ठीक है। अगर आपके यूज केस ये सारी चीजें आपको बता रहे हो तो दे आर वेरी वेल मॉडल यूज केसेस, ठीक है। अच्छा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूज केस, ठीक है। इसके अंदर दिस एग्जाम्पल इज बेसिकली फ्रॉम द प्रेसमैन बुक, जिसके अंदर एक सेफ होम एक सॉफ्टवेयर है जिसकी एग्जाम्पल ऑथर ने, प्रेसमैन ने, ही टेकन दिस एग्जाम्पल। उसने डिफरेंट मॉडलिंग जो टेक्निक्स हम देखेंगे एक ही डायग्राम, एक ही प्रॉब्लम की उन्होंने मॉडलिंग की है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो इफ यू आर फॉलोइंग द बुक यू विल फाइंड दैट इन द प्रेसमैन बुक, ठीक है। नाउ द प्रोडक्ट सेफ होम, व्हाट द प्रोडक्ट इज मेंट टू डू, you must have seen that in the movies कि when people are when they basically come into their house तो वो कुछ पासवर्ड डालते हैं और वो अलार्म्स को डिसेबल कर देते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर इन द हाउस, ठीक है। जब वो घर से बाहर जाने लगते हैं तो वो इस प्रोडक्ट को एक्टिव कर देते हैं और वो पासवर्ड डालते हैं और इसको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी ब्रेक इन हो तो अलार्म हो जाए, पुलिस को पता लग जाए, अगर आग हो तो फायर ब्रिगेड आ जाए, यू नो दैट्स द काइंड ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी आर मेकिंग हियर, ठीक है। अब इसके अंदर द यूज केस दैट इज बीइंग मॉडल्ड हियर इज, उसके अंदर आपका एक्टर कौन है जो कि आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। वन एक्टर इज द होम ओनर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इस प्रोडक्ट के साथ कोई भी और इसका एक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, होम ओनर के अलावा कोई नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना पासवर्ड लोगों के साथ शेयर कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि एवरीबडी कैन ब्रेक इन इनटू योर हाउस, ठीक है जी। तो द होम ओनर इज द प्राइमरी एक्टर इन दिस केस, ठीक है। होम ओनर कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। नंबर वन इज, अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो जो पहला फंक्शन ही कैन परफॉर्म इज, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट एक्सेस कैमरा सर्वेलेंस वाया द इंटरनेट, ठीक है। यानी कि
ही कैन, वो इंटरनेट पे बैठ के कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट अपने घर में, वो इस वक्त नहीं है और ही वॉन्ट्स टू सी कि उसके घर में अभी क्या हो रहा है, ठीक है। तो यूजिंग इंटरनेट, एंड इंटरनेट को यूज करके वो इस सिस्टम को यूज करेगा और ही कैन व्यू कैमरास। वो फॉर एग्जांपल देखना चाहता है कि जी गैरेज इज सेफ, मेरे लिविंग रूम सेफ है, सब कुछ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, तो ही कैन डू दैट। द सेकंड थिंग दैट द यूजर कैन डू और द होम ओनर कैन डू, ही कैन कॉन्फ़िगर द सेफ होम सिस्टम पैरामीटर्स, ठीक है जी। वो सभी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जिसमें आप ऑटोमेटिक अलार्म भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द सेटिंग्स कैन बी कि आप कह देंगे जी रात को 10 बजे क्योंकि मैं सो जाता हूँ, तो उसके बाद अलार्म ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, ठीक है। तो यू कैन कॉन्फ़िगर योर सिस्टम, ठीक है। एंड नंबर 3 इज यू कैन सेट अलार्म्स, ठीक है। आप अलार्म की कंडीशंस भी सेट कर सकते हैं, कौन से टाइप का अलार्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ फायर तो देयर माइट बी अ डिफरेंट अलार्म, ठीक है। इफ समबडी ब्रेक्स इन तो देयर माइट बी अ डिफरेंट अलार्म, ठीक है। तो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये तो ह्यूमन एक्टर हो गया विच इज द प्राइमरी एक्टर। अच्छा, इसके अंदर जो सेकेंडरी एक्टर है दैट इज कैमरा एज वेल, ओके। कैमरा आपके सिस्टम को इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वो कौन से केस में दे रहा है, ये जो हमने अभी ऊपर देखा कि एक्सेस कैमरा सर्वेलेंस वाया द इंटरनेट, तो उसके अंदर कैमरा आपके सिस्टम को कोई चीज प्रोवाइड कर रहा है विच आर द इमेजेस, ठीक है। तो दैट इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दिस यूज केस। अच्छा जी, अब इसी की हम एक और अगर एग्जांपल लें, ठीक है, जो मैं अगर आपको एचआर वाले के अगर हम सिस्टम के बनाने की कोशिश करें तो हमारी सबसे पहले तो क्या होगी, हमारे सिस्टम की बाउंड्री कैसे बनेगी, ठीक है। दिस इज आवर सिस्टम बाउंड्री लेट्स से, ठीक है। अच्छा, अब हमारे जो एचआर वाले के हमने एचआर मैनेजर के हमने फंक्शंस बनाए थे, ही कैन बेसिकली क्या कर सकता है, ही कैन व्यू डेली अटेंडेंस, ठीक है, ही कैन डू दैट। सेकंड फंक्शन क्या कर सकता है, जनरेट रिपोर्ट्स, ठीक है। दिस इज द सेकंड फंक्शन दैट ही कैन परफॉर्म, ठीक है। तो हमारा इस केस में एक्टर क्या होगा, ही इज द एचआर मैनेजर, और वो क्या कर रहा है, ही इज डूइंग दैट एंड ही इज डूइंग दैट, ठीक है। अब इस यूज केस के अंदर अगर देखें तो हम सिर्फ एचआर मैनेजर का इंटरेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट कंसर्न के हम इसके अंदर, जिस तरह हम अभी दूसरे एक्टर्स को जिक्र नहीं कर रहे, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड के अंदर वी कवर्ड के इस सोल्यूशन के अंदर और भी एक्टर्स हो सकते हैं, जिसके अंदर वो बायोमेट्रिक डिवाइस भी हमने डिस्कस किया, लेकिन अभी हम सिर्फ एचआर मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सिस्टम को देख रहे हैं। तो वो क्या कर सकता है, डेली अटेंडेंस देख सकता है और वो रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह एचआर मैनेजर शायद एक और फंक्शन ये परफॉर्म कर सकता है कि वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स भी देख सकता है, ठीक है। ठीक है, एक और फंक्शन शायद ये हो सकता है कि एचआर मैनेजर रिकमेंड भी कर सकता है सर्टेन टास्क के लिए लोगों को, डिपेंडिंग ऑन के जी वो कितने पंक्चुअल हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम, और जिसके लिए आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो आपसे क्या क्या बनवाना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, तो अगर हम एचआर मैनेजर का यूज केस बनाएं इस एचआरएम सोल्यूशन के अंदर, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सोल्यूशन है, तो क्या क्या बनेंगे, व्यू डेली अटेंडेंस, जनरेट रिपोर्ट्स और व्यू इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। But this is just a brief introduction of use cases, ठीक है। अभी हम सारी यूज केस की नोटेशंस we will cover that in a separate lecture, okay जी। Now we are moving on towards the activity diagrams, ठीक है। तो एक्टिविटी डायग्राम के लिए आपको, जब आप एक्टिविटी डायग्राम हम हर केस में नहीं बनाते, ठीक है, दिस इज अगेन समथिंग इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इफ एन एक्टर कैन परफॉर्म ऑल्टरनेटिव एक्शंस, तो देन वी नीड टू मेक द एक्टिविटी डायग्राम्स, क्योंकि वो फिर उसको एक्सप्लेन करती हैं कि अगर ये नहीं हुआ, ये होगा, तो फिर आपके एक्शंस क्या होंगे, ठीक है। So the set of questions that we need to ask ourselves is, can the actor take some other action at this point, ठीक है। For example, we'll see the example के जिस तरह, और second question क्या है कि is it possible that the actor will encounter some error condition at this point, यानी कि कोई भी decision point आता है आपके सिस्टम के अंदर, और if an actor can do one thing or another, तो then you make this activity diagram। जिस तरह इसकी example हम, this is the example, और again the example is from Pressman, और ये उसी सेफ होम वाले सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, ठीक है। आप देखें इसके अंदर द फर्स्ट थिंग इज दैट द यूजर एंटर्स द पासवर्ड, ठीक है। हियर द होम ओनर ही एंटर्स द पिन नंबर, ठीक है। अब दिस डायमंड बॉक्स ये शो करता है कि यहाँ पे कोई डिसीजन लिया जा रहा है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये मल्टीपल डिसीजन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हर एक डिसीजन पॉइंट के ऊपर देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट द एक्टर कैन परफॉर्म, ठीक है।
अगर तो उसका आईडी जो है और जो उसने पासवर्ड डाला है, इफ इट्स अ वैलिड आईडी एंड अ वैलिड पासवर्ड, तो फिर वो क्या करेगा, ही विल सेलेक्ट अनदर फंक्शन कि फॉर वंस ही इज लॉग्ड इन इनटू द सिस्टम, तो द नेक्स्ट थिंग ही वुड डू, ही वुड सेलेक्ट अ फंक्शन दैट ही वांट्स टू परफॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो अपने सिस्टम को डिसेबल करना चाह रहा है, अपने सिस्टम को इनेबल करना चाह रहा है, या अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस किसी भी तरह से चेंज करना चाह रहा है, ही विल सेलेक्ट अनदर फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर उसका पासवर्ड इनवैलिड है और उसने जल्दी में पिन डाल दिया एंड इट्स इनवैलिड, ठीक है, यहाँ कोई चोर आ गया एंड ही ट्राइड टू एंटर द पासवर्ड व्हिच वुड बी रॉन्ग, तो वो इनवैलिड पासवर्ड का आएगा। तो उसके अंदर क्या फंक्शन होगा कि देयर इज अ प्रॉम्प्ट फॉर री एंट्री, यूजर को जाएगा कि प्लीज री एंटर दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल कि जब भी आपको अपने यूज केस की बेसिस के ऊपर आपको पता लगे कि एक्टर कैन परफॉर्म मल्टीपल एक्शंस एट सर्टेन डिसीजन पॉइंट्स, तो यू नीड टू मेक एक्टिविटी डायग्राम्स, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखें, इस पूरे फ्लो को हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे ही कैन सेलेक्ट अ मेजर फंक्शन, ठीक है। अगला इसके बाद अगर आप इस फ्लो को देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ही सिलेक्ट सर्वेलेंस, ठीक है। अब सर्वेलेंस के अंदर भी उसके पास ऑप्शन है कि आइदर ही कैन हैव थंबनेल व्यूज और स्पेसिफिक कैमरास। थंबनेल व्यूज का क्या मतलब है कि वो उसको सारे व्यूज नजर आ रहे हैं, जैसा एक कैमरा उसके गैराज में लगा हुआ है, एक फ्रंट डोर पे लगा हुआ है, एक लिविंग रूम में है, एक बेडरूम में है, तो देयर आर बेसिकली 5 कैमरास। वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है कि ही वांट्स टू व्यू व्हाट्स हैपनिंग इन द लिविंग रूम और ही वांट्स टू सिलेक्ट कि व्हाट इज हैपनिंग इन द गैराज, ठीक है। तो दिस इज द थंबनेल व्यू। लेकिन एक स्पेसिफिक कैमरा का व्यू क्या होगा कि वो फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लेता है कि नहीं जी मुझे सिर्फ अपने गैराज को देखना है या फ्रंट डोर को देखना है, ठीक है। तो अगेन देयर इज डिसीजन, यहाँ पे वो 2 चीजें कर सकता है, ठीक है। फिर आपका इन दोनों की बेसिस के ऊपर क्या होगा कि व्यू कैमरा आउटपुट इन द लेबल्ड विंडो, ठीक है। कोई जो भी वो सिलेक्ट करेगा, थंबनेल करता है तो तब सारे कैमरास की आउटपुट आ रही होगी, अगर एक करता है तो स्पेसिफिक की आ रही होगी, ठीक है। और फिर आपको यूजर को ऑप्शन आ जाए कि एक और व्यू की ऑप्शन आ जाए, ठीक है। और फिर अगेन डिसीजन पॉइंट है, डिसीजन पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ तो वो इस फंक्शन से एग्जिट कर जाएगा कि बस उसने कैमरास को देख लिए और ही विल बेसिकली सिलेक्ट अनदर कैमरा, जो कि आप ये देख रहे हैं कि ये एरो यहाँ पे वापस जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी मेक एन एक्टिविटी डायग्राम। इफ हमारे सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या थे, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि कैन एक्टर टेक सम अदर एक्शन एट दिस पॉइंट, अगर वो कोई और एक्शन ले सकता है। तो देखें अब इसके अंदर हमें पहले ही पता लग गया कि वो कोई अगर 2 काम कर सकता है तो देन वी डू दैट। अच्छा जी, इसी को अगर हम इसी एग्जाम्पल को अपने जहन में रखते हुए लेट्स ट्राई एंड मेक, वो जो एचआर वाला हमने एग्जाम्पल ली थी उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं जी ये हमारे सिस्टम की स्टार्टिंग है, ठीक है। अच्छा, अगेन हम कहते हैं कि जी अगर आपका एचआर मैनेजर ने सिस्टम में लॉगिन करना है तो ही एंटर्स पासवर्ड, ठीक। अब उस पासवर्ड की बेसिस के ऊपर जिस तरह इसके अंदर था उसी तरह हमारे सिनेरियो के अंदर भी बन जाएगा, ठीक है। पहला क्या बनेगा कि अगर उसका पासवर्ड जो है वो गलत था, अगर तो इनवैलिड था, ठीक है, तो यहां पे उसे क्या करना पड़ेगा, अपना पासवर्ड री एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। और इफ द पासवर्ड वाज वैलिड तो आपके उसको एचआर मैनेजर को कोई फंक्शन सिलेक्ट अ फंक्शन, ठीक है, वो कोई भी फंक्शन सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसी तरह अगर वो सिलेक्ट फंक्शन के अंदर क्या करता है कि ही सेज कि ही वांट्स टू व्यू रिकॉर्ड, ठीक है। अब व्यू रिकॉर्ड के बाद भी उसके पास 2 ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। पहली ऑप्शन उसके पास क्या आएगी, ही सेज कि जी ही वांट्स टू व्यू इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स और ही वांट्स टू ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है। तो यू कैन सी कि हमारी उस एग्जांपल के अंदर भी एन एचआर के पास, जब मैनेजर के पास देयर आर मल्टीपल डिसीजन पॉइंट्स, आपके सिस्टम के मल्टीपल एक्शंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पासवर्ड गलत है तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, वैलिड पासवर्ड है तो आपको एचआर मैनेजर को ऑप्शन आ जाएगी कि जी सेलेक्ट अ फंक्शन, जो भी उसने काम करना है, ठीक है। वो व्यू अटेंडेंस करता है, रिपोर्ट जनरेट करता है, व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। इसी तरह अगर इनवैलिड आता है तो उसको फिर प्रॉम्प्ट आ जाएगी कि प्लीज री एंटर योर पासवर्ड अगेन, ठीक है। तो here is something that you need to understand कि अगेन एक्टिविटी डायग्राम हम उसी वक्त बनाएंगे जब हमें पता हो कि हमारा एक्टर्स के या हमारा सिस्टम मल्टीपल एक्शन परफॉर्म कर सकता है डिपेंडिंग ऑन समथिंग दैट द एक्टर इज डूइंग, ठीक है। देन वी मेक दिस एक्टिविटी डायग्राम्स। ओके जी, द थर्ड थिंग दैट वी सॉ अपनी सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के अंदर दैट वाज स्विम लेन डायग्राम्स, ठीक है जी। हम स्विम लेन डायग्राम्स कब बनाते हैं, स्विम लेन डायग्राम्स हमें क्या बताती हैं कि हम अपने सिस्टम को डिफरेंट बाउंड्रीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
या हम उसको डिफरेंट जो चीज़ें हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, हम उनके हिसाब से सिस्टम की बाउंड्रीज बना देते हैं। जिस तरह हमारा जो सेफ होम वाली एग्जांपल है, जो कि हमने अभी अपने पिछली 2 एग्जांपल्स उसकी देखी नहीं, उसके अंदर वन एक्टर इज द होम ओनर, द सेकेंड एक्टर इज द कैमरा, और तीसरी हमारी जो चीज़ है वो इंटरफेस है, ठीक है। अब इन 3 बाउंड्रीज के अंदर अपने सिस्टम को डिवाइड कर दिया। इसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, ये हमने जब एनालिसिस मॉडलिंग की हम चीज़ें पढ़ रहे थे, वी सॉ कि एनालिसिस मॉडलिंग की बेसिस के ऊपर हम अपने सिस्टम को पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन वी आर डूइंग दिस फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और वी आर डूइंग इट फ्रॉम द एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दिस इज रिमेंबर सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, ठीक है। तो जो पहली चीज होम ओनर कर रहा है, अब देखें इसके अंदर होम ओनर की, अगर आप स्विम लेन, हम इसको क्यों कहते हैं, अगर आपने स्विमिंग पूल देखा हो तो स्विमिंग पूल के अंदर डिफरेंट लेन्स बनी होती हैं, ठीक है, और एक लेन के अंदर एक ही स्विमर स्विमिंग करता है जब भी कोई स्विमिंग का कंपटीशन होता है। तो इसी तरह इस डायग्राम को भी अगर आप देखें तो इसके अंदर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये एक पूरी लेन बनी हुई है, और ये एक दूसरी लेन बनी हुई है, और ये तीसरी लेन है, और इस लेन के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय होम ओनर। इसी तरह इसके अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, दीज आर परफॉर्म बाय द कैमरा, और इसके अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, ये आपका इंटरफेस आपको बता रहा है, यूजर को कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप होम ओनर के नीचे देखें तो एंटर्स पासवर्ड एंड यूजर आईडी, ठीक है, दैट इज वन थिंग दैट द होम ओनर इज डूइंग। इसी तरह आपका होम ओनर दूसरा काम क्या कर रहा है, ही इज सिलेक्टिंग अ फंक्शन, ठीक है, कोई भी वो फंक्शन सेलेक्ट कर रहा है कि वो कैमरा देखना चाहता है या अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहता है, व्हाटएवर, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। इसी तरह जब कैमरा है कि कैमरा सिर्फ क्या कर रहा है, कैमरा सिर्फ एक चीज कर रहा है जो कि सिस्टम को वो दे रहा है, एक वीडियो की जो भी वो रिकॉर्ड कर रहा है वो सिस्टम को भेज रहा है, यानी कि व्हाटएवर द कैमरा इज सीइंग इट इज गिविंग इट टू द सिस्टम, ठीक है। तो देयर इज जस्ट वन फंक्शन अगर आप इस कैमरा के अंदर देखें। आपका इंटरफेस क्या कर रहा है, आपका इंटरफेस आपको क्या करता है, अगर पासवर्ड इनवैलिड है तो वो आपको प्रॉम्प्ट करता है यार मुझे दोबारा पासवर्ड दो। दूसरा चीज क्या करता है कि आपको वो ऑप्शन देता है कि यार अगर आपने एक काम कर लिया दूसरा काम करना चाह रहे हैं तो आपको उसकी प्रॉम्प्ट दे देगा कि व्हाट इज द अदर थिंग दैट यू वांट टू डू। तो वी सी कि ये पहली तरह की हमने पार्टीशन देखी अपने सिस्टम की, वो किस बेसिस के ऊपर देखी है, एक्टर्स की बेसिस के ऊपर, कि हमारे सिस्टम से कौन कौन लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर हमने अपने सिस्टम की डिफरेंट बाउंड्रीज देख ली हैं। नाउ लेट्स सी कि जो स्विम लेन डायग्राम है, अगर हम अपनी जो एचआर मैनेजर की एग्जांपल्स अभी डिस्कस करते आ रहे थे एचआर मैनेजमेंट सोल्यूशन की, सी की स्विम लेन डायग्राम, उसके लिए अगर हम इन्हीं को डिवाइड करने की कोशिश करें तो कैसे बनेगी। तो व्हाट आर द एक्टर्स इन एचआर मैनेजमेंट सोल्यूशन। सबसे पहले तो आपका जो एक्टर है वी हैव, अगर हम इसी के अंदर देखें, हम अपनी बाउंड्री बनाने की कोशिश करें तो हमारा पहला एक्टर कौन है, वी हैव द एचआर मैनेजर, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पर्सन जो कि आपका एक आपके सिस्टम की बाउंड्री बनाएगा। इसी तरह आपका इसके अंदर जो डिवाइस है वो हम कह देते हैं, हमने जिस तरह कहा था दैट इज द बायोमेट्रिक डिवाइस जो कि लोग अटेंडेंस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वही से हमारे सिस्टम की मेनली 2 इस तरह की एक्टर्स की बेसिस के ऊपर बाउंड्रीज बन रही हैं। अब एचआर मैनेजर कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ही कैन लॉग इन टू द सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर वो अपना पासवर्ड और अपनी आईडी डालेगा और लॉग इन करेगा, ठीक है। तो जो आपकी हमारी स्विम लेन के अंदर जो पहला चीज बनेगी वो क्या है कि एंटर पासवर्ड, ठीक है। इसी तरह उसकी बेसिस के ऊपर फिर अगला वो फंक्शन क्या कर रहा है। अब आप देखें कि स्विम लेन के अंदर हम अगर इन सारे फंक्शंस को देखें तो ये एंटर पासवर्ड डायरेक्टली मेजर फंक्शन से कनेक्टेड नहीं है, ये बेसिकली कनेक्ट हो रहा है, पहले वो पासवर्ड की वैलिडिटी चेक कर रहा है फिर इससे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग टू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप स्विम लेन बनाते हैं तो स्विम लेन के अंदर हम सिर्फ उस एक एक्टर की उस लेन जो होती है उसके अंदर वही फंक्शन डालते हैं तो वो परफॉर्म कर सकता है। तो एचआर मैनेजर अगला फंक्शन क्या परफॉर्म कर सकता है, ही विल बेसिकली सिलेक्ट अ फंक्शन, ठीक है, कि उसने करना क्या है, ठीक है। यहाँ तो अच्छा वो सिलेक्ट फंक्शन के अंदर लेट्स से कि वो सिलेक्ट करता है कि वो व्यू करना चाह रहा है स्टेटस, तो वो अब इसके अंदर क्या कर सकता है, वो इंडिविजुअल भी कर सकता है या समराइज्ड व्यू सारे एम्प्लॉयज़ का कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एचआर आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसके अंदर भी देखें तो हमारी जो लेन्स है वो एचआर मैनेजर और बायोमेट्रिक के अंदर सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे इनपुट आ रही है जिसको कि हम कह रहे हैं डेली अटेंडेंस की, ठीक है, वो आपके सिस्टम को इसके अंदर कहीं जा रही है, और जब यहाँ तो वो समराइज देखेगा या जो भी देखेगा तो यहाँ से ये जो है दिस विल बी कनेक्टेड टू दिस व्यू अटेंडेंस, ठीक है। The important thing that you need to keep in mind
again we will cover this, we will do various examples of swim lane diagrams, use case diagrams and activity diagrams in a separate lecture. The purpose was कि हम यहाँ पे अभी क्या चीज़ देख रहे हैं कि एनालिसिस मॉडलिंग क्या होती है, और एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर हम अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की एक टेक्निक सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग को हमने ब्रीफली वी हैव डन अ क्विक ओवरव्यू ऑफ दैट. ठीक है, नाउ लेट्स समराइज टुडेज लेक्चर दैट व्हाट वी हैव कवर्ड. वी स्टार्टेड ऑफ with a quick overview of inception and elicitation. ठीक है, then we saw कि the next phase of requirement engineering is elaboration or analysis modeling, जिसके अंदर what we do is we try to elaborate on our system on whatever requirements we have gathered so far. ठीक है, then we saw कि analysis modeling हम करते क्यों हैं. ठीक है, analysis modeling के हमें क्या क्या फायदे होते हैं और करने के क्या क्या तरीके हैं. ठीक है, और हमने देखा कि एनालिसिस मॉडलिंग को ब्रॉडली आप दो तरह की मॉडलिंग टेक्निक्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, दूसरे को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस. देन वी सॉ, जो हमने अपने इस लेक्चर के अंदर कवर किया है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की एक तरह की मॉडलिंग की टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग. ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कवर्ड सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग. वी हैव डन अ क्विक ओवरव्यू ऑफ सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग. उसके अंदर वी हैव सीन कि हाउ डू वी मेक यूज केसेस, what set of questions a use case should answer. ठीक है, then we saw कि आपका activity diagram हम क्यों बनाते हैं. ठीक है, if a user or an actor can perform alternate actions or he has decision points, ठीक है, on the basis of some function that he is performing, तो you need to make activity diagram. ठीक है, इसी तरह हमने देखा कि swim lane diagrams हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे सिस्टम की पहली पार्टीशन होती है ये. We get to know कि एक एक्टर कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है आपके सिस्टम के अंदर. ठीक है जी, तो दिस इज ब्रॉडली हमने आज के लेक्चर में क्या कवर किया. ठीक है, एंड लेट्स डू अ क्विक ओवरव्यू कि फॉर एग्जांपल हमने एचआर की एग्जांपल के अंदर वी सॉ कि अगर हमारा ये सिस्टम की बाउंड्री है, ठीक है, और हमारा एक्टर इस केस के अंदर कौन है, आर एक्टर इज द एचआर मैनेजर. ठीक है, एचआर मैनेजर हमारे सिस्टम के अंदर क्या कर सकता है, he can basically log in. ठीक है, that's the first function that he would perform. ठीक है, the second function that he would perform, he can basically view records. ठीक है, another thing that he can do is he can generate reports. ठीक है, ठीक है, तो दीज आर द ब्रॉडली थ्री फंक्शन दैट वी सॉ. ठीक है, कि वो लॉग इन कर सकता है, रिकॉर्ड्स व्यू कर सकता है और जनरेट कर सकता है. इसी तरह हमने कहा था कि इस केस के अंदर जो सेकेंडरी एक्टर होगा दैट वुड बी दैट बायोमेट्रिक डिवाइस. ठीक है, और ये क्या कर रहा है, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट करता है. जैसे आपने डेली अटेंडेंस की तो एक नया रिकॉर्ड आ गया कि ये वाला एम्प्लॉय आ गया. ठीक है जी, दिस इज जस्ट अ क्विक स्मॉल एग्जांपल ऑफ यूज केस जो हमने एचआरएम सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, यूज की अगर इसी की हमने कहा था एक्टिविटी कैसे बनेगी, एक्टिविटी ऐसे बनेगी कि ये हमारा सिस्टम है. ठीक है, और पहला काम हमसे क्या किया कि ही एंटर्स पासवर्ड. अच्छा, अगर तो आपका पासवर्ड ठीक है, यहाँ पे अब क्या एक डिसीजन हो रहा है. डिसीजन किस बेसिस पे हो रहा है कि इफ द पासवर्ड इज इनवैलिड, तो यहाँ पे एक फंक्शन होगा जो कि क्या करेगा, जो कि आपके एचआर मैनेजर करेगा री एंटर पासवर्ड. जब वो री एंटर करेगा तो वो दोबारा यहाँ पर आएगा. ठीक है, और इफ द पासवर्ड इज वैलिड तो ही कैन सिलेक्ट अ फंक्शन. ठीक है, वो कोई भी फंक्शन सिलेक्ट करेगा, जिस तरह वो फंक्शन सिलेक्ट करता है कि व्यू रिकॉर्ड्स. अब व्यू रिकॉर्ड के अंदर भी हमने कहा यहाँ पे एक डिसीजन है, आइदर ही कैन व्यू इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स या वो एक समराइज्ड व्यू देख सकता है जिसके अंदर वो शायद सारे एम्प्लॉयज़ का देखेगा. तो इस तरह से इसकी एक्टिविटी डायग्राम बन सकती है. ठीक है, और इसी के हमने स्विम लेन अपने सिस्टम की किस बेसिस पे कहा था कि हमने कहा कि जी हमारे सिस्टम की ब्रॉडली दो लेन्स हैं. एक लेन के अंदर हमारे कौन बैठे हुए हैं, एचआर मैनेजर, और दूसरा हमारा बायोमेट्रिक वाली है. और इसी की तरह हमने जो जो फंक्शंस हमारे एचआर मैनेजर के थे, जो स्विम लेन होती है, अगर आपके पास एक्टिविटी डायग्राम बनी हो तो इफ़ यू एक्सपोर्ट दैट डायग्राम इनटू, और उस एक्टिविटी डायग्राम को आप एक्टर वाइज डिवाइड कर दें, यानी कि आप एक तरह के जो कुछ फंक्शन जो एक एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं उनको एक लेन में डाल दें, जो दूसरा परफॉर्म कर रहे हैं उसको दूसरी लेन में डाल दें, तो दैट विल बी अ स्विम लेन डायग्राम. ठीक है, यानी कि फॉर ईच एक्टिविटी डायग्राम यू कैन मेक अ स्विम लेन डायग्राम. ठीक है, और इन अ सिस्टम देयर can be multiple swim lane diagrams, or there can be multiple activity diagrams, or there can be multiple use case diagrams. ठीक है, this is another thing that you need to know. So this is a quick overview of scenario based modeling, and I hope you get the basics
but you do not need to worry because we will be covering this use case and we will cover the notations in a lot of detail in the separate lecture on use cases. Assalamu alaikum. Inshallah, I will see you in the next lecture where we will cover कि हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस जो बाकी टेक्निक्स हैं हम अपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह. टिल देन, अस्सलाम वालेकुम.